Good morning, dear children. Dear children, here we start here exercise 12.12 class 3rd maths. So here 4 word problems are given here. So first question is Rima buy a box of colored pencil for rupees 112.50. C give a 200 rupee note to the shopkeeper. How much money will C get back? So dear children, cost of a box of colored pencil rupees 112.50. C gave a 200 rupee note to the shopkeeper. So money will C get back. So 200 minus 112.50. अब यहाँ ध्यान रखिए, इसमें डेसिमल में है और ये डेसिमल में नहीं है, तो माइनस जब करेंगे तो इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो हम डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा लेंगे। जब डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाएंगे फिर माइनस करेंगे। सो ये इससे कैरी, इससे कैरी लेगा, तो 10 minus 5 = 5। ये इसको कैरी लिया तो हो गया 9 minus 5, सॉरी ये तो 0 minus 0 = 0, 10 minus 5 = 5। ये हो गया 9 इसको कैरी लिया था, 9 minus 2 = 7, 9 ये इसको लिया था इसलिए 9 minus 1 = 8, एंड ये इसको कैरी लिया था इसलिए हो गया 1 minus 1 = 0। मींस कॉस्ट ऑफ C get back rupees 87.50. Now question number 2. Next question. A calculator costs rupees 175 more than a pencil box. So what the cost of a pencil box is rupees 99.50. So find the cost of the calculator. Look at here, means the cost of calculator is not given here. Cost of pencil box is given here, and cost of calculator is more than the pencil box is given. Means ये कैलकुलेटर के जो कॉस्ट है कितना ज्यादा है पेंसिल बॉक्स से वो दिया है। सो कितना ज्यादा है 175 मोर देन पेंसिल बॉक्स, मोर देन अ पेंसिल बॉक्स। ओके, मोर देन अ पेंसिल बॉक्स। सो cost of pencil box is rupees 99.50. so the cost of calculator ये इससे इतना ज्यादा है, so 175 plus 99.50। इसमें भी देखिए डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, हम इसमें डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा देते हैं। ये जीरो हमने बढ़ा दिया, 5 0 0 0 0 5 0 5 5 9 14 to 4 carry 1 10 10 7 17 to 7 carry 1 1 1 2 equal rupees 274.50. Means the cost of calculator is rupees 274.50. Now the question number 3. Jia buy a box of eraser rupees 48. What is the cost of each eraser is rupees 4. How many erasers are there in the box? मीन्स जिया ने एक इरेजर का बॉक्स ही खरीद लिया, उस पूरे बॉक्स की कॉस्ट थी रुपीज 48 और ईच इरेजर की कॉस्ट जो आती है वो आती है रुपीज 4। तो ये इसमें बताना है कि हाउ मेनी इरेजर्स आर देयर इन द बॉक्स। सो जिया बाय अ बॉक्स ऑफ इरेजर रुपीज 48 cost of each eraser is rupees 4. So number of eraser in the box equal 48 divided by 4 equal 4 1 is 4, 0 comes from here 8, 4 2 is 8, 0 means 12 erasers in the box। means उसमें ये पूछा कितने इरेजर, तो देखिए बॉक्स के अंदर टोटल कॉस्ट बताया है, जो बॉक्स है टोटल पूरे बॉक्स की कॉस्ट बता दिया है, और ईच इरेजर की कॉस्ट भी यहाँ बताया है। अब नंबर ऑफ इरेजर जब निकालना हो तो उसके कॉस्ट से ईच इरेजर की कॉस्ट आप डिवाइड कर दीजिए ईच इरेजर की कॉस्ट से, तो वो आपको नंबर ऑफ इरेजर आ जाएगा। ओके, सो द हाउ मेनी इरेजर्स आर देयर इन द बॉक्स? 12 इरेजर इन द बॉक्स। 12 इरेजर्स आर देयर, look at here, are there
in the box. Okay. Now question number 4. The price of 5 pencil is rupees 25 rupees. What is the price of 1 pencil? So look at here, cost of 5 pencil is rupees 25. So the cost of 1 pencil rupees 25 divided by 5 equal 5 5 25. So cost of 1 pencil is rupees 5. Now dear children, question number exercise 12.4. Here only one question here, so I will tell you here question exercise 12.4. Now the dear children, exercise 12.4 only one question. Here bid is here. So first question is Mrs. Verma goes to market to buy fruits. She has rupees 1500. वो 1500 रुपये लेके जाती है. She buy 2 kg of apples, 2 kg of watermelon, 1 kg of mangoes. So help the fruit seller in preparing the bill. So look at here children, वो 1500 रुपये लेके जाती हैं, तो यहाँ पे किसी की कॉस्ट नहीं बताया है. एप्पल की कॉस्ट नहीं बताया है, वाटरमेलन एंड मैंगोस की कॉस्ट नहीं बताया है. ये हमने अपने से कॉस्ट लिखा है. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं कॉस्ट में. बट इसका सिर्फ मीनिंग ये है कि आपको बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं वो. तो सबसे पहले मैं यहाँ देखिए, यस मंगलम फ्रूट सेलर उस दुकान का नाम है. ओके. शॉप नंबर क्या होता है, पहले सेकंड में शॉप नंबर और एड्रेस होता है. तो शॉप नंबर 10 MG रोड बेंगलुरु एंड कैश मेमो. अब ये कौन सा बिल नंबर है? जैसे ये हम फर्स्ट बिल नंबर बना रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 01. यदि कोई सेकंड नंबर और सीरियल नंबर चला रहता है तो बिल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड वहां डालते हैं. आज कौन सी डेट है? आज डेट है जैसे 2/21. ओके. सो तो हम आज की डेट डाल दिए. अब यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर. सीरियल नंबर मींस आप कितने आइटम ले रहे हैं, 1 2 3 4, तो वो सीरियल नंबर डालते हैं. आइटम्स में जो आप परचेज करते हैं, जो खरीदते हैं. क्वांटिटी दूसरा कॉलम होता है. क्वांटिटी में कितने क्वांटिटी खरीदते हैं, 1 kg 2 kg 1 लीटर मिल्क 2 लीटर मिल्क एंड 1 kg ऑफ मैंगो 2 kg ऑफ मैंगो 1 बुक. जो भी आप खरीदते हैं उसको आइटम, और जितने मात्रा में खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी. रेट जो होता है, रेट रुपीज में होता है, रुपीज में, बट वो रुपीज जो कॉस्ट होती है वो पर की होती है, यानी एक की कीमत होती है. चाहे वो 1 kg एप्पल हो, 1 kg बनाना मैंगो हो, 1 kg वाटरमेलन हो, 1 kg बनाना हो, जो भी हो वो 1 kg के हिसाब से रेट डालते हैं. और यहाँ डालते हैं अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट जो होता है टोटल अमाउंट. ओके. और लास्ट में यहाँ होता है टोटल अमाउंट करके, उधर लास्ट में उनको हम ऐड करते हैं. अब देखिए आप, फर्स्ट है एप्पल 2 kg एप्पल. तो हमने यहाँ पे एप्पल की कॉस्ट लिया है 80 रुपीज. तो 2 kg ऑफ एप्पल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल 160.00 रुपीज. हमने 2 kg एप्पल की कॉस्ट, 1 kg एप्पल की कॉस्ट है 80 रुपीज, तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट हो गई 160 रुपीज. ओके. कैसे आया? हमने मल्टीप्लाई किया. वाटरमेलन 2 kg वाटरमेलन, हाउ मेनी kg? 2 kg. सो 1 kg वाटरमेलन की कॉस्ट हमने कितना लिखा है? 40 रुपीज. So 2 kg of watermelon equal 40 multiplied by 2 equal rupees 80. Now third is mangoes. So 1 kg mango. So 1 kg mango equal rupees 90. So 1 kg, यहाँ 1 kg है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 multiplied by 90 equal rupees 90. अब ये टोटल हो गया. अब टोटल अमाउंट सबको हम ऐड कर देंगे. 0 0 0 0 0 0 डेसिमल. Now 0 0 0. Now 8 9 17 plus 6 equal 23. 3 carry 2.
2 plus carry 1 equal 3 rupees 330.00। उसका टोटल अमाउंट उसने कितना खर्च किया 330 रुपीस। अब यहाँ पे आगे ये नहीं पूछा है उसने कितना रिटर्न बचा या उसको 1500 पूरा खर्च करना था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो कॉस्ट बताता उसकी एप्पल की, तो कॉस्ट भी नहीं बताया, तो यहाँ आप चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, your chapter 12 is completed. Now in the next video I will tell you exercise 13.1 and 13.1 is chapter 13 is data handling. Okay, so thank you, have a nice day.